Hello and welcome, dear students. Dear students, this is our lecture third of general organic chemistry. In the lecture first, we have discussed about inductive effect. In the lecture second, we have started a very important concept, that is resonance. First lecture में हमने जो resonance का था, which was the second lecture of general organic chemistry, वहां पे हमने discuss किया main concept of resonance as well as the rules for the resonance. Now, in this very lecture, which will be the lecture second of resonance, in this very lecture, we will discuss conditions for resonance. Conditions for resonance. Dear students, remember that there is one important condition for resonance, that is there should be conjugation. There should be conjugation. What's meant by conjugation? देख लीजिए dear students, mainly generally we are saying that the conjugation is if there is alternate pi sigma pi bond. मीन्स अगर कहीं पे पाई बॉन्ड होगा, उसके बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके बाद कोई पाई बॉन्ड होगा, उसके बाद कोई पाई बॉन्ड होगा. जनरली वी आर सेइंग दैट द कंजुगेशन मीन्स देयर मस्ट बी अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. मीन्स सिग्मा पाई सिग्मा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या पाई सिग्मा पाई. बट देयर स्टूडेंट्स, if you have to understand the concept of resonance, conjugation is generally of 5 types. Conjugation is generally of 5 types. First one is there must be pi sigma. मैं इस तरह से लिखूंगा pi single bond and positive charge. वहां पे positive charge होना चाहिए. Pi sigma and positive, what we can say. Pi उसके बाद सिग्मा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज. दैट मीन बी पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स अस द वैकेंट ऑर्बिटल है. शाबाश. सेकंड टाइप ऑफ कंजुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर. सेकंड लेक्चर में मैंने जो रेजोनेंस का हमने यहां पे डिस्कस किया, मैंने वहां पे कहा lone pair also indicates as the negative charge, or we can say pi sigma lone pair. Pi single bond means sigma bond, lone pair. Third type of conjugation, pi sigma, this is known as free radical. Free radical dot, एक ही electron. This very dot represents us one electron. This is also a type of conjugation. Pi sigma positive charge, pi sigma lone pair or negative charge, pi sigma dot free radical. Shabash. Fourth one, pi sigma pi. And also there is fifth type of conjugation, that is lone pair sigma means single bond and positive charge. Yeah. नोट करके रख लीजिए. These are the 5 types of conditions which are required for resonance, which are must for resonance. Resonance के लिए ये 5 conditions, these are must there. There must be conjugation. Conjugation is of 5 types. Pi sigma, this very single bond indicates as the sigma bond, positive charge. Pi sigma lone pair or negative charge. Negative charge represents us 2 electrons, lone pair represents us the 2 electrons. Pi sigma dot free radical, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. Pi sigma pi, pi sigma pi, pi bond sigma bond, after that pi bond, and lone pair sigma positive charge. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. We will discuss the examples of each of the 5 types one by one. शाबाश. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. This is the condition. This is the condition. These are the conditions. The main condition for resonance is that there must be conjugation. Conjugation is of 5 types.
that there must be alternate pi sigma positive charge, alternate pi sigma negative या lone pair, alternate pi sigma free radical, alternate pi sigma pi and alternate lone pair sigma positive charge. Shabash. We will discuss the examples of each and every type one by one. देख लीजिए जो हमने रेजोनेंस में एग्जाम्पल्स डिस्कस किए डियर स्टूडेंट्स, वही एग्जाम्पल्स हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं. यहां पे अगर डबल बॉन्ड होगा, ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी. CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यही एग्जाम्पल वो है. ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में है. ये हमने इससे पहले वहां पे रेजोनेंस फर्स्ट में डिस्कस किया है. शाबाश. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज. कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस विल मूव हियर, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस वेरी पाई बॉन्ड हैज मूव्ड हियर, और ये इस वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज. इस वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए. इसका अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, लेकिन इसने यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया, दैट इज व्हाई इस पे पॉजिटिव चार्ज. अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड. उसके बाद मैंने क्या कहा, आप लोग पाई बॉन्ड को जहां जहां पे पाई बॉन्ड है उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लोगे. यहां पे भी पाई बॉन्ड है और यहां पे भी पाई बॉन्ड है. मैं यहां पे डॉट 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 डॉट, यहां पे भी डॉट. नाउ कहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है. यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव. दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. बहुत सिंपल है. These are the examples of conjugation with respect to pi sigma positive charge. और एक एग्जाम्पल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड. अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस विल मूव हियर. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाता है, यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन यहां पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ दिस फिर से यहाँ पे कंजुगेशन है, फिर से यहाँ पे कंजुगेशन है. पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव. नाउ यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाता है. नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दीज आर द थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन दिस वेरी केस. व्हाट विल बी देयर रेजोनेंस हाइब्रिड. मैं यहां पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पे भी पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड और यहां पे पाई बॉन्ड. नाउ देख लीजिए, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे भी पाई बॉन्ड. नाउ यहां पे भी पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये यहां पे भी पाई बॉन्ड है, ये और यहां पे हर किसी जगह पे पाई बॉन्ड है. यहां पे पाई बॉन्ड, मतलब हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हमें देखना है कहां कहां पे पाई बॉन्ड है, वहां पे हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है. नाउ अब हमें देखना है कि कहां पे पॉजिटिव चार्ज है. यहां पे पॉजिटिव चार्ज है डेल पॉजिटिव, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है डेल पॉजिटिव, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है डेल पॉजिटिव. दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. दिस विल बी इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. These are the examples of conjugation with respect to pi sigma positive charge. Pi sigma positive. यहाँ पे भी pi sigma positive. फिर से pi sigma positive. This is it is resonance hybrid. This will be it is resonance hybrid. Now और एक example with respect to this very type यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. These are the resonating structures. This is the
resonance hybrid. This will be the resonance hybrid. This will be the real structure. These are imaginary structures. These are imaginary structures. This one is the real structure. This one is the resonance hybrid, is the true structure. Now, second example. Third example with respect to यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. नाउ पाई सिग्मा पॉजिटिव, दिस विल मूव हियर. नाउ यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड, लेकिन दिस वेरी पाई बॉन्ड हैज मूव्ड हियर. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब फिर से यहाँ पे कंजुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज. अब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. नाउ यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, इन दिस वेरी केस देयर विल बी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नाउ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें क्या करना है, पहले हमें पाई बॉन्ड्स को जहां जहां पे वो मूव हो रहे हैं वहां पे हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है. कहां पे, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड. देख लीजिए, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है. दिस इज द डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स. नाउ पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है डेल पॉजिटिव, और कहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे वो डेल पॉजिटिव, और कहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव. दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. These are the examples with respect to the conjugation pi sigma positive charge. जब conjugation होगी alternate pi sigma positive charge होगा. हाँ, शाबाश. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Now pi sigma lone pair or pi sigma negative. Second type of condition or second type of conjugation is pi sigma lone pair or negative charge. Negative charge represents 2 electrons. Negative charge represents 2 electrons. Same is the case here. यहाँ पे negative charge, यहाँ पे double bond. Pi sigma negative charge. Pi sigma negative charge. This negative charge will move here. This will move here. This negative charge moves here. This moves here. ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. Now this negative charge जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है. दिस पाई बॉन्ड मूव्स हियर, ये नेगेटिव चार्ज में चेंज हो जाता है. शाबाश. नाउ व्हाट इज देयर रेजोनेंस हाइब्रिड. नाउ नेगेटिव चार्ज कहां पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल नेगेटिव, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा डेल नेगेटिव. दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज द रियल स्ट्रक्चर. जिस तरह से वहां पे हमने सेकंड एग्जांपल डिस्कस की, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड. नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज विल मूव हियर, दिस विल मूव हियर. डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से नेगेटिव सिग्मा पाई और पाई सिग्मा नेगेटिव या पाई सिग्मा लोन पेयर है. Now in the another resonating structure this will move here and this will move here. याद रख लीजिए. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड. अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे डबल बॉन्ड है और किस तरह से हमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है. पहले हम सिग्मा बॉन्ड्स लिखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है. हर किसी जगह पे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है. दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग
हर किसी कार्बन एटम पे पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड है, दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय डॉट्स। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और कहाँ पे है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। दिस विल बी इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस विल बी इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ, बस ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोगों को रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना आ जाए, विद रेस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, विद रेस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। हाँ, अगर किसी भी एग्जांपल में आप लोगों को इस तरह की एग्जांपल सामने आ जाएगी तो आप लोग ये खुद क्लासिफाई कर सकते हो कि इज इट पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव, या पाई सिग्मा लोन पेयर है। दिस इज पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी अराइज होती है, नेगेटिव सिग्मा पाई या पाई सिग्मा नेगेटिव, वन एंड द सेम थिंग। दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर। नाउ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें पहले पाई बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना है विद रेस्पेक्ट टू डॉट्स, एंड नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव से। हाँ, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। और एक एग्जांपल देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, पाई सिग्मा लोन पेयर की एक और एग्जांपल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दिस इज लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। अभी मैंने कहा कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, दिस वेरी लोन पेयर मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर। ये मैंने रेजोनेंस फर्स्ट में यहाँ पे ये एग्जांपल हमने डिस्कस की। अब एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। यहाँ पे ये which type of conjugation it is pi sigma lone pair, pi sigma lone pair. This very lone pair moves here, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अराइज होती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज एंड H लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। हाँ, यहाँ पे ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड एंड ये दिस पाई बॉन्ड। नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर, दिस मूव्स हियर। यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, एंड दिस पॉजिटिव H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बिकॉज ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज विल मूव हियर एंड दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर। ये एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं। नाउ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे positive and H. Now this very negative charge moves here, or this very pi bond moves here. These are the 5 resonating structures in case of phenol. This is phenol. बेंजीन को जब OH अटैच होगा तो फिनॉल है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने रेजोनेंस फर्स्ट में भी कहा था, दिस इज आर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, आर्थो मेटा एंड पैरा। आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज एंड आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड फिर से, नाउ यहाँ पे OH, O पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पहले हम डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे, OH के बीच में डबल बॉन्ड है, देन डॉट्स, यहां पे भी डॉट, हर एक जगह पे डॉट्स, बिकॉज मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर। अब कहां कहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव चार्ज एंड आर्थो पे नेगेटिव चार्ज। दिस विल बी इट इज RH, RH मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस विल बी इट इज real structure in case of phenol, in case of phenol. Shabash. This is the example of pi sigma negative charge और pi sigma lone pair. हाँ, शाबाश। 3 एग्जाम्पल्स, 2 3 एग्जाम्पल्स हम हर एक टाइप के डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। Now third type is pi sigma, this dot, this is known as free radical. देख लीजिए dear students, I will explain you what is a free radical. For example, my dear students,
हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है एक्स वाई, एक्स और बी वाई के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रिमेंबर इट। अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, दैट इज नोन एज बॉन्ड फिशन। इफ व्हाट इज बॉन्ड फिशन या व्हाट इज फिशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड या ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए बॉन्ड, ब्रेक डाउन ऑफ ए बॉन्ड इज नोन एज फिशन, इज नोन एज फिशन। फिशन मीन्स ब्रेक डाउन, fission means breakdown. If we have to break down this very bond x and y, suppose y is more electronegative in character than x, y is more electronegative in character than x. If we will break this very bond, if y is more electronegative in character than x, x will develop positive charge and y will develop negative charge, because y has greater y is greater electronegativity than x. With respect to x, y develops negative charge because y is more electronegative in character than x. या अगर हम कहेंगे a और b, अगर यहाँ पे a पॉजिटिव प्लस b नेगेटिव, शाबाश, दैट इज x पॉजिटिव प्लस y नेगेटिव, इसका मतलब है b is more electronegative in character than a, because that is why it has attracted the shared pair of electrons towards itself and negative charge has developed over it and positive charge has developed over a, because a is less electronegative in character than b. This breakage of bond, when there is complete positive and complete negative charge, it is known as heterolytic bond fission. Heterolytic bond fission. Heterolytic bond fission with respect to two elements which have different electronegativity. One has more electronegativity than other, and why that means which one, that very element which has more electronegativity than another develops a negative charge and another develops a positive charge. Suppose a single bond b, electronegativity of b is equal to a. Suppose electronegativity of b is equal to a. If I have to break down this very bond, it will give a dot plus b dot. इसका मतलब है this very single bond, here in this very case there are two electrons which have been shared between a and b. अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगा, अगर a और b के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, a भी एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और b भी एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, this very bond fission is known as homolytic bond fission. In case of homolytic bond fission, there is the formation of free radicals. A naught या A dot or B dot, these are known as free radicals. Free radical indicates only one electron. It indicates only one electron. That is why ये concept मुझे कहना पड़ा. What is bond fission? Bond fission means breakdown of a bond. शाबाश. Bond fission is of two types, heterolytic and homolytic. In case of heterolytic bond fission, the two elements, the bond between two elements which we want to break have different electronegativity. When we break that very bond, one gets negative charge and another gets complete positive charge. In case of homolytic bond fission, the bond between the two elements have similar electronegativity, and there is the formation of free radicals. That means each element gets one electron. हर एक element को एक एक electron मिलेगा, हर एक atom को एक एक electron मिलेगा. A dot, B dot, A dot. This is free radical. Free radical indicates one electron. शाबाश. Now, if
there is the possibility of conjugation. If there is a pi bond sigma free radical, there is the possibility of conjugation. There is the possibility of movement. There is the possibility of movement of pi electrons. Movement of, actually here we are discussing resonance. Resonance means movement of pi electrons or lone pairs of electrons. For example, यहाँ पे मैं आप लोगों को example दूंगा. This is dot and there is a pi bond. Pi bond, single bond, dot means free radical. Single bond means sigma bond. शाबाश, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी डॉट रिप्रेजेंट्स वन इलेक्ट्रॉन. In case of the other two types which we have discussed here, that is pi sigma positive, pi sigma negative. वहां पे हम कंप्लीट एरो को इस तरह से मैंने कहा था, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पे कंप्लीट एरो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन. दिस वेरी पाई बॉन्ड, इसका मतलब है दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, मगर यहाँ पे हमें एक एक इलेक्ट्रॉन को मूव करना है. दिस वन इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर, मैं हाफ एरो को रिप्रेजेंट करता हूं. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है. वन इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड हियर, एक इलेक्ट्रॉन ने मूव यहाँ पे किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, हाफ एरो. नाउ अनदर इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड हियर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया. कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें फॉर्म हो गई, देख लीजिए. दिस रेडिकल मूव्स हियर, और एक रेडिकल यहाँ पे आ गया, उन्होंने एक पाई बॉन्ड बनाया. मींस ए पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यहाँ पे एक रेडिकल रह गया, ये वाला रेडिकल. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ द कंजुगेशन पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इंडिकेट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे भी रेडिकल है, ये रेडिकल यहाँ से यहाँ भी मूव हो रहा है, दैट मीन्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये तीनों कार्बन एटम्स पे मूव हो रहे हैं, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम. नाउ देख लीजिए, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, मैंने यहाँ लिखा डेल्टा रेडिकल, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है, डेल्टा रेडिकल. यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखना है. दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. इन केस ऑफ the type of conjugation when it involves pi sigma free radical, pi sigma free radical. और एक एग्जांपल आप लोगों को इजी हो जाएगा. दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज pi bond, this is pi bond. Now conjugation pi sigma free radical. Now देख लीजिए, हाफ एरो, यहाँ पे हाफ एरो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि एक ही इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है. दिस वेरी हाफ एरो, फुल एरो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हाफ एरो. हाँ, नाउ देख लीजिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. जब यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ से एक रेडिकल, दो रेडिकल्स आ गए, मींस दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उन्होंने एक पाई बॉन्ड बना लिया. यहाँ से यहाँ पे सिर्फ एक रेडिकल मूव हो गया, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे पाई बॉन्ड. फिर से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. नाउ ये फ्री रेडिकल यहाँ मूव हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ, और दिस वेरी फ्री रेडिकल विल मूव हियर. अच्छी तरह से समझ लीजिए. नाउ ये मैं मिटा दूंगा यहाँ पे. देख लीजिए, दिस, नाउ दिस, और यहाँ पे रेडिकल, अब यहाँ पे रेडिकल. नाउ व्हाट विल बी इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. कहां पे पाई बॉन्ड है, हर किसी जगह पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, और यहाँ पे भी डॉट. नाउ फ्री रेडिकल कहां पे है, इस वाले कार्बन एटम पे डेल्टा रेडिकल, और बीच वाले कार्बन एटम पे डेल्टा रेडिकल, और इस वाले कार्बन एटम पे डेल्टा रेडिकल. दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. नाउ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंजुगेशन पाई सिग्मा फ्री रेडिकल. यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा व्हाट इज ए फ्री रेडिकल. ए फ्री रेडिकल इंडिकेट्स ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एंड दीज वेरी फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन. होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में द टू एटम्स, द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, between these very two atoms which have similar electronegativity, at that very time there is the formation of free radicals. Shabash. Now और एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे.
with respect to pi sigma free radical with respect to a ring. यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, दिस इज फ्री रेडिकल. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट 1, हाफ मूवमेंट, हाफ, यहाँ पे हाफ. नाउ this very radical and this very radical, this very pi bond indicates represents as 2 electrons and यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट. Now what will be their resonance hybrid? अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, और यहाँ पे डॉट, डेल डॉट एंड डेल डॉट. दिस इज इट इज resonance hybrid. These are the examples of the type of conjugation which involves pi sigma free radical. Pi sigma free radical. Now pi sigma pi. Type of conjugation in which there is 4 type of conjugation: pi, single bond, pi, alternate pi, sigma pi. शाबाश, देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसे आप, दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड. यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे भी पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई. देख लीजिए डियर स्टूडेंट, पाई सिग्मा और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई. नाउ दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर. ओ नेगेटिव, यहाँ पे एच, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया आर्थो पोजीशन पे? बिकॉज दिस वेरी पाई बॉन्ड हैज मूव्ड हियर. नाउ आर्थो पोजीशन पे अब पॉजिटिव चार्ज, आर्थो पोजीशन पे अब पॉजिटिव चार्ज. अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए कि दिस वेरी पाई बॉन्ड हैज मूव्ड हियर एंड यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. अब क्या यहाँ पे कौन सी कंजुगेशन अराइज होती है? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस विल मूव हियर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दिस पाई बॉन्ड हैज मूव्ड हियर इन दिस वेरी पोजीशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है. नाउ यहाँ पे CO नेगेटिव, यहाँ पे H. नाउ फिर से पाई सिग्मा पॉजिटिव, दिस मूव्स हियर और यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CO नेगेटिव और H. दिस इज डबल बॉन्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, इन द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर. ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. ये फिर से बेंजल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, उस पोजीशन पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड. इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड IUPAC नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने ये देखा होगा. शाबाश. नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे C, देख लीजिए O, यहाँ पे H, डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और हर किसी जगह पे यहाँ पे डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दिस रिप्रेजेंट्स एज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. नाउ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज और कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मैंने डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया, इस आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज मैंने डेल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया. दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज इट इज रियल स्ट्रक्चर. दिस इज इट इज रियल स्ट्रक्चर. हाँ, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज द एग्जांपल ऑफ पाई सिग्मा पाई.
pi sigma pi. Pi electron of carbon and oxygen. Huh? Shabash. Now another example. Pi sigma pi. आप लोगों ने यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बेंजल डाइड, अगर H के बदले यहाँ पे मैं R लिखूंगा तो कीटोन. यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, यही रेजोनेंस हाइब्रिड है, लेकिन H के बदले R. हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या अगर मैंने यहाँ पे R नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मीन्स बेंजोइक एसिड की यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ H के बदले OH या R के बदले OH. या अगर मैंने यहाँ पे OR, ये एस्टर की भी यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही रेजोनेंस हाइब्रिड, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू अल्डिहाइड यहाँ पे H था, यहाँ पे OR है. मीन्स all the carbonyl group containing compounds attached to the benzene ring have the same resonating structures, same resonance hybrid, but वहां पे functional group की difference है, यहाँ पे अगर OR बाकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसी तरह से होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ यहाँ पे OR है. अगर OH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड, अगर Cl होगा तो एसिड क्लोराइड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर H होगा तो बेंजल्डिहाइड, जो हमने अल्डिहाइड यहाँ पे अभी किए, और अगर R होगा तो कीटोन. R होगा तो कीटोन. हाँ, यहाँ पे आप दूसरी एक एग्जाम्पल आप लोगों को ये खुद ब खुद आ जाएगी. यहाँ पे NO डबल बॉन्ड O, नाइट्रोबेंजीन का हम डिस्कस कर लेंगे. देख लीजिए, दिस इज पाई सिग्मा पाई. दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर. ये भी उसी तरह से. नाउ देख लीजिए, एंड दिस एरो इंडिकेट्स अस द, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, इट इंडिकेट्स अस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आता है. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, या हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. नाउ यहाँ पे और एक कंजुगेशन अराइज होती है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, दिस मूव्स हियर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. बहुत सिंपल है. यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, N पॉजिटिव, O नेगेटिव. नाउ दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NO नेगेटिव O. नाउ दिस मूव्स हियर एंड दिस मूव्स हियर. These are the resonating structures in case of nitrobenzene. Under the type of conjugation, pi sigma pi. What will be its resonance hybrid? देख लीजिए dear students, what will be its resonance hybrid? यहाँ पे N O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ये हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है. दैट मीन्स हम इस पॉजिटिव चार्ज को डेल्टा पॉजिटिव से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है एक ही जगह पे. यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा, लेकिन यहाँ पे डॉट नेगेटिव चार्ज, डॉट, यहाँ पे भी डॉट्स रिप्रेजेंट्स अस द पाई इलेक्ट्रॉन्स. दीज विल रिप्रेजेंट अस द पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे डेल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज इज शिफ्टिंग इन केस ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव. दिस इज इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. शाबाश. दीज आर द two very important examples of the conjugation pi sigma pi. शाबाश.
यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ये मैं डियर स्टूडेंट, जब हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस हम डिस्कस कर लेंगे, या टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, या मीजोमेरिज्म, यहाँ पे रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट या मीजोमेरिज्म इज वन एंड द सेम थिंग, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में कहूंगा। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है, आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। शाबाश। जब मैंने अभी यहाँ पे फिनाल का डिस्कस किया था, फिनाल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो उसने लोन पेयर डोनेट किया था टू द रिंग। यहां से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन N, और उसने विड्रा किए थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पैरा और आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। इनके साथ फिनाल दोनों आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। नहीं पेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, नहीं नेगेटिव चार्ज। ये वाली मेटा पोजीशन है। आपके फिनाल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसको आप फिर से देख लीजिए। मेटा पोजीशन पे ना तो वहां पे नेगेटिव चार्ज, ना तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी ना तो ड्यूरिंग रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे नहीं पॉजिटिव चार्ज, नहीं नेगेटिव चार्ज। आप लोग ये ध्यान में दे दीजिए कि मेटा पोजीशन पे नहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप लोग आगे ये सीख लोगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, कि व्हाई मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ द कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई। नाउ लास्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन इज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिफ्थ, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है। नाउ देख लीजिए, इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, this CH3O CH2 पॉजिटिव, यहां पे। नाउ कंजुगेशन में पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। व्हेन दिस विल मूव हियर, व्हेन दिस विल मूव हियर, यहां पे कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप अराइज होगी? O पे अब पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, यहां पे डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द टाइप ऑफ ए कंजुगेशन, बहुत रेयर है। पाई लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। और एक एग्जांपल CH3N CH2 पॉजिटिव, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। व्हेन दिस विल मूव हियर, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH3N, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। These are the two examples with respect to lone pair sigma positive charge. Lone pair sigma. This will be another type of a conjugation. Both rare है, हाँ? शाबाश. Thus, dear students, here we have discussed about the examples of resonance. Also, we will say that, and also the types of conjugation, and also the types of conjugation. Conjugation is generally of 5 types. Conjugation is generally of 5 types. Pi, sigma, positive charge, या positive charge means vacant orbital, pi sigma lone pair or negative, pi sigma free radical। फ्री रेडिकल के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा कि फ्री रेडिकल होता क्या है। pi sigma pi very important, and after fifth one it is rare type of a conjugation is lone pair sigma positive charge. Thus, dear students, this will be our lecture second with respect to resonance, with respect to resonance, क्योंकि this very topic, resonance topic, is
too much important from every examination point of view. That is why मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी आ जाएंगी और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप अच्छी तरह से बना लीजिए. After that, after this very lecture, this is the lecture of general organic chemistry, third lecture. We are discussing the third lecture of general organic chemistry here. Now, after this very lecture, our fourth lecture will be about the stability of resonating structures. Very important. वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है 2-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो आप लोगों को देता है ऑप्शंस में और कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल. वहां पे आप लोगों को अच्छी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट होना चाहिए. हाँ, दस दैट विल बी आवर नेक्स्ट क्लास. डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.